The Shadow by Sir J. M. Barrie. Suddenly, the window was blown open by the wind. Peter rushed into the room through the open window to look for his lost shadow. He jumped at the drawers, scattering their contents to the floor with both hands. In a moment, he found his shadow inside the drawer. Peter had thought that he and his shadow, when brought near each other, would join like drops of water, and when they did not, he was shocked. He tried to stick on his shadow with soap from the bathroom, but that also failed. A shudder passed through Peter, and he sat on the floor and cried. His sobs woke Wendy, and she sat up in bed. She was not worried to see a stranger crying in the room. She was only pleasantly interested. "Boy," she said politely, "why are you crying?" Peter could be polite also, having learned the grand manner at fairy ceremonies, and he rose and bowed to her beautifully. She was much pleased and bowed beautifully to him from the bed. "What's your name?" he asked. "Wendy Moira Angela Darling," she replied with some satisfaction. "What is your name?" "Peter Pan." She was already sure that he must be Peter, but it did seem a short name compared to hers. "Is that all?" she asked him. "Yes," he said rather sharply. He felt for the first time that his name was a shortish name. "I'm so sorry," said Wendy Moira Angela. "It doesn't matter," Peter gulped. She asked where he lived. "Second to the right," said Peter, "and then straight on till morning." What a funny address! Peter had a sinking feeling. For the first time, he felt that perhaps it was a funny address. "No, it isn't," he said. "I mean," Wendy said nicely, remembering that she was the hostess, "is that what they put on the letters?" "Don't get any letters," Peter said disapprovingly. "But your mother gets letters." "Don't have a mother," he said. "Oh, Peter, no wonder you were crying," she said, and got out of bed and ran to him. "I wasn't crying about mothers," he said rather angrily. "I was crying because I can't get my shadow to stick on. Besides, I wasn't crying." "It has come off?" "Yes." Fortunately, Wendy knew at once what to do. "It must be sewn on." "I shall sew it on for you, my little man," she said. Though he was as tall as herself, and got out her sewing bag and sewed the shadow onto Peter's foot. "I dare say it will hurt a little," she warned him. "Oh, I shan't cry," said Peter, who believed that he had never cried in his life. And he clenched his teeth and did not cry. And soon his shadow was behaving properly, though it was still a little creased. "Perhaps I should have ironed it," Wendy said thoughtfully. But Peter was indifferent to appearances, and he was now jumping about in the wildest glee. Alas, he had already forgotten that he owed his happiness to Wendy. He thought he had attached the shadow himself. "How clever I am!" he cried rapturously. "Oh, the cleverness of me!" अपनी स्टोरी का नाम है द शैडो। एक खिड़की हवा से खुल जाती है और पीटर उसके उस विंडो से घर के अंदर आ जाता है अपनी खोई हुई शैडो को ढूंढने के लिए। वो जब आता है तब ड्रॉवर के पास यहाँ वहाँ उसकी शैडो मिलती है, उसको वो समेटने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे होती नहीं है। तब उसको बहुत गुस्सा भी आता है और रोना आ जाता है और लगता है कि ये शैडो तो एक पानी की बूंद की जैसे हो गई है। और फिर इसी कारण उसको शौक लगता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरी जो शैडो है, मेरी जो परछाई है वो क्यों नहीं चिपक रही है। फिर साबुन से उसको चिपकाने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं होता है। फिर उसको रोना आ जाता है। उसका रोने का आवाज़ सुन के जिसका घर है वो लड़की विंडी उड़ जाती है, अपने बेड में बैठ जाती है और वो अपने रूम में अजनबी आदमी लड़के को देख के चौंकती है। फिर भी वो अपने प्लीजेंट इंटरेस्टिंग बोल से उसको बोलती कि बॉय
क्यों रो रहा है। तभी पीटर उसको पता चलता है कि वो अजनबी के घर में आ चुका है, लेकिन फिर भी वो बहुत पोलाइटली उसको आंसर देता है कि मैं पीटर हूँ करके। और वो उसकी ब्यूटी को देखता है, वो बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, अपने बेड पे बैठी है और प्यार से उसके साथ बोलती है, नाम पूछती है। तब वो लड़की को भी नाम पूछता है। लड़की बोलती है विंडी मौर्य एंजल डार्लिंग करके वो अपना नाम बताती है और लड़के को पूछती है तुम्हारा नाम। तो वो बोलता है पीटर पैन। पीटर पैन, इतना छोटा सा नाम, बहुत छोटा है, मेरा देखो कितना बड़ा है। ऐसे वो लड़की उसको बोलती है, ये ऐसा क्यों, इतना छोटा नाम क्यों। तभी वो बोलता है कुछ नहीं बोलता है और उसे फील होता है कि सच्ची में उसका नाम बहुत ही छोटा है। विंडी मौर्य एंजेला को पता चलता है कि वो ऐसे उसको बोलना नहीं चाहिए, पर लड़का बोलता है कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। फिर वो उसको पूछती तुम कहाँ पे रहते हो, तो वो बोलता है कि मैं राइट कॉर्नर में, फिर स्ट्रेट जाओ और मॉर्निंग तक मैं वहीं पे रहता हूँ। तो लड़की बोलती इतना फ़नी, मैं पहली बार तुम्हारा एड्रेस देख रही हूँ। पीटर को बहुत फील होता है कि इसका सच्चे में एड्रेस बहुत ही फ़नी है, पर वो बोलता है कि ऐसे कुछ नहीं है, फ़नी भी नहीं, कुछ नहीं है। और तभी विंडी लड़की को पता चलता है कि मैंने ऐसे बोलना नहीं चाहिए। और तो बोलती है कि तुम्हारा एड्रेस ऐसे ही है क्या, लेटर्स ऐसे ही लिखे जाते हैं क्या। तो बोलता है कौन से लेटर, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो फिर वो लड़की विंडी उसको पूछती है कि तुम्हारी मम्मी जो है उसका है क्या। तो बोलता है कि मुझे तो मदर ही नहीं है। और वो रोना, इसलिए तुम रो रहे थे क्या। वो उठ के लड़के के पास जाती है। पीटर बोलता है नहीं मैं मम्मी के लिए नहीं रो रहा हूँ, मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है कि मेरी शैडो जो है ना वो मेरे से चिपक ही नहीं रही है, वो दूर दूर भाग रही है, टूट जा रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो वो मेरी शैडो मुझे मिलानी है। लड़की बोलती है कि ओह अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हारी शैडो जो है ना वो तुमको चिपका के दे देती हूँ, उसको सिलाई मार के दे देती हूँ, फिर वो यहाँ वहाँ कहीं भागेगी नहीं, ऐसे बोलती है। तब वो अपने रूम में से जो धागा होता है और सुई होती है वो लेके आती है और उसके पैर को पकड़ के शूज़ को सिलने की कोशिश करती है। तब उसको बोलती है देखो भैया लग भी सकता है। तो पीटर बोलता है कि नहीं, मैं लगा भी तो मैं रोऊंगा नहीं। आपको पता है ये कभी रोया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। और वो अपने दांतों को एक दूसरे के ऊपर रख कर नहीं रोना है, इसलिए वो बैठ जाता है और प्रॉपरली देखता है कि मेरा शैडो अच्छे से फिट हो रही है क्या नहीं हो रही है। विंडी अच्छे से उसको सिलाई करती है। उसके बाद में उसको बोलती है कि देखो अभी तुम्हारी शैडो इधर उधर नहीं जाएगी। वो जंप करके भी देखता है और वो जो इस तरह से जंप करता है कि विंडी को बहुत हैप्पीनेस फील होता है। और जब वो जो से जंप कर रहा है तभी वो बोलता है कि देखो देखो मैंने मेरी शैडो चिपका ही ली, कितना क्लेवर हूँ मैं। तभी विंडी बोलती है कि तुम नहीं, मैं ही तुमसे ज़्यादा क्लेवर हूँ। समझ में आया? थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।